Good morning, students. Today we are going to start your lesson number 8, divisibility, standard 6 maths. What is divisibility? We have learned in the last previous standard about the divisibility. The number, which number will be divisible by 2 or 5 or 10. So if there is on unit place, if there is a number 0, 2, 4, 6, 8 is there at the unit place, so that number will divided by 2, or the number will 0 or 5 is at unit place, so that number will be divided by 5. And 10, at the unit place there is a 0, it means which that number will divided by 10. अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. और यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होगा, मतलब सिर्फ 0 वाले यूनिट प्लेस वाले जो नंबर होंगे वो सब 10 से डिवाइड होंगे. नाउ वी विल स्टार्ट दिस एक्टिविटी. रीड द नंबर्स गिवन बिलो. Which of these numbers are divisible by 2, by 5 or by 10? Write them in the empty boxes. Here we have to write what? Divisible. Which number is divisible by 2? Here the numbers which is divisible by 5, and here the number which is divisible by 10. First see the number 125. See, at the unit place there is a 5. It means this will not divisible by 2, because at the unit for this number we want what? We need at the unit place 0, 2, 4, 6, 8, and here is what? 125. It means it is divisible by 5. 125 divisible by 5. 364. 364 is divisible by 2, because at the unit place there is a 4. 475. 475 at the unit place there is a 5. It means it is divisible by 5. 475. 750. See, here at the unit place there is a 0. It means it is divisible by 2, it is divisible by 5, and it is divisible by 10 also. Understood? 750 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी completely डिवाइड होगा. So we will write over here and over here also and here also 750. Then 800. See, at the unit place there is a 0. It means it will divisible by 2, by 5 and by 10 also. Write it in the column 800, 800, and here is also 800. 628. It is divisible by 2 only. 628. 206. At the unit place there is a 6, so divisible by 2 only. 508. Divisible by 2 only. 7009. This will not divisible by 2, 5 and 10. See this number 5345. This will divisible by 5. 5345. Then 8710. It is divisible by all the 3 numbers. So 8710. Here is also 8710 and here is also 8710. I hope you all have understood how to see which number is divisible by which number. Okay. Now there is some divisibility test. See, there is a number and here are the what? First see this one. Divisibility test for 3. What? Divisibility test for 3. If the sum of the digits in a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. It means what? अगर
हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, यानी कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा हम कैसे मालूम करेंगे। तो अगर उस सम, वो जो नंबर है उसका सम मीन्स व्हाट, टोटल, जो भी नंबर दिया होगा उसका टोटल अगर वो डिवाइड बाय 3 होगा तो यानी वो नंबर भी जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे कि नंबर है 63, अभी हमने क्या पढ़ा, इफ़ द सम, दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, आगे भी और 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, फिर है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, देन डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। These 3 points you have to write in your notebook. So divisibility test for 3. If the sum of the digits in a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. अगर उसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है तो उसका वो नंबर भी जो है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। सी 63, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, मतलब उस दोनों नंबर का टोटल, जो भी नंबर दिया होगा उसको टोटल करना है आपको। 6 + 3, 63 को क्या कर दो, 6 + 3, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। इज 9 डिविजिबल बाय 3? क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस, 3 3 = 9। सो इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया, टिक किया है। इज़ द सम डिविजिबल बाय 3, यानी ये जो हमने टोटल किया है ये आया है 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो यस किया है। इज़ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3? क्या ये जो नंबर दिया हुआ है ये भी डिविजिबल बाय 3 है? तो ये भी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सीखा है कि अगर उसका सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर उसका टोटल डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अंडरस्टूड? सो 63 भी जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। सी द नेक्स्ट वन, नंबर इज़ व्हाट, 872। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर हम उसका टोटल करेंगे। 8 + 7 + 2, 8 + 7 + 2, 8 + 7 व्हाट, 15, 15 + 2 17। इस 17 डिविजिबल बाय 3? 17 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मार्क किया। और वो नंबर भी जब उसका सम ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। सी द नेक्स्ट वन, 91। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 + 1। दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी विच नंबर इज डिविजिबल बाय विच। सो 9 + 1 इज व्हाट, 10। इज 10 डिविजिबल बाय 3? नो, इट मीन्स द नंबर गिवन इज नॉट व्हाट, डिविजिबल बाय 3. So cross mark. 5 5 2, 5 + 5 + 2, 5 + 5 10, 10 + 2 what, 12. So is 12 divisible by 3? Yes, is divisible by 3. Is the number is divisible by 3? This number is divisible by 3. 552? Yes, it is also divisible by 3। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो हम इसको 3 से डिवाइड करके दिखाते हैं। 5 5 2, 3 1 = 3, 5 - 3 2, then 5, 3 8 = 24, 25 - 24 1, then 2, 3 4 = 12। हो गया ये कम्प्लीटली डिवाइड। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपको उसका टोटल देख के बताना है। अगर वो टोटल डिवाइड हो रहा है उस नंबर के बीच में आपको प्लस साइन डाल के उस नंबर को टोटल करना है। अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो यानी वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ये 3 के लिए है। अब जैसे कि ये है 9 3 3 6, तो क्या करेंगे हम लोग, 9 + 3 + 3 + 6, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21। इज 21 डिविजिबल बाय 3? यस, 3 7 = 21 आता है ना टेबल में। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3।
So is this number is divisible by 3? Yes. Why? Because the sum of this number is divisible by 3. So that number is also divisible by 3. 4, 5, 2, 7. What we will do? We will see this sum plus 7. 4 plus 5, 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 7, what? 18. Is 18 divisible by 3? Yes. Is that number is divisible by 3? Yes. If this, yes, so this is also yes. अगर ये divisible हो रहा है तो ये भी divisible होगा. This is for only what? 3. Divisible by 3. ये divisibility test for 3 था. जब भी आपको divisibility of 3 देखना होगा तो आप क्या करोगे? उन सब नंबर को टोटल करके देखोगे. Got it? Now see the next one. This one, this table. For this, what we will understand first? Divisibility test for 4. हमने अभी 3 का देखा. Now we will understand the divisibility test for 4. If the number formed by the digits in the tens and units places of the number is divisible by 4, then that number is divisible by 4. It means what? अभी हम लोगों को कौन सा हम लोग टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं? 4 की. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो नंबर दिया हुआ है उसके टेंस और यूनिट, सिर्फ टेंस और यूनिट का नंबर हम बनाकर देखेंगे, टेंस और यूनिट लेंगे. अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है यानी वो पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा. अब वो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, बस आपको हमको उसके क्या देखना है? यूनिट और टेंस का नंबर देखना है. से दिस वन 992. Here is what? Divide the number by 4. Is it completely divisible? The number formed by the digits in the tens and unit places. Is this number divisible by 4? यानी हम लोग क्या करेंगे? पहले यूनिट और टेंस का नंबर लिखेंगे. यूनिट और टेंस, देखो ये यूनिट और ये टेंस. यूनिट और टेंस का नंबर यहाँ पे लिख लिया. क्या हो गया? 92. 92 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो होगा ये 4 से डिवाइड. देखो 92. 4 2 ज़ा 8. 9 minus 8 1. Then 2 12. 4 3 ज़ा 12. Is it completely divisible by 4? This 92? Yes. So put tick over here. Then divide the number by 4. Is it completely divisible? अब ये अगर नंबर डिवाइड हो गया तो ये भी होगा. तो अब हम लोग इसको भी डिवाइड करके देखते हैं. 992. 992 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 ज़ा 8. 9 minus 8 1. देन ये 9 उतार देंगे. 4 4 ज़ा 16. 4 4 ज़ा 16. Then 9 minus 6 3. Then 2 number will 32. 4 8 ज़ा 32. Is it completely divisible by 4? Yes, it is completely divisible by 4. So put over, tick over here. Got it? Say this one. 7314. How we'll check this number? So we'll see the tens and what? Unit and tens number. What? 14. Number is what? 14. Is 14 divisible by 4? 4 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा. जब ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा. आप चाहिए तो वैसे ही चेक करके देख सकते हो बाय डूइंग व्हाट? डिविजन मेथड. 6448. First we'll see the unit and tens number. What is the units and tens number? This number is what? 48. Is 48 divisible by 4? See, 48 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है. 4 1 ज़ा 4. Then 4 minus 4 0. 8. 4 2 ज़ा 8. Yes, it is divisible by 4. So tick over here.
and is this number is divisible by 4, it means this number is also completely divisible by 4. 8116. What we will do? 8116. We'll see the tens and unit number. That is what? 16. And 16 is what? Divisible by 4, because 4 fours are 16. So put right mark over here. 773. So number will be what? 73. We will see 73. Is 73 divisible by 4? No, it will not divisible by 4. So put cross mark over here, and this is also not completely divisible by 4. 3024. So what we will take? 24. Only tens and unit. रिमेंबर इट, जब आप लोग 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 लोगे, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये देखना होगा, तो आपको यही करना है कि यूनिट और टेंस का नंबर लेना है और उसी से आपको देखना है कि वो अगर 4 से डिवाइड होगा तो यानी वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. सो 24 इज डिविजिबल बाय 4. 4 6 are 24. Then this number is also divisible by 4. Have you understood? See the next one. Numbers are given. Divide the number by 9. Is it completely divisible? अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट है? Divisibility test for 9, which is given in your textbook at the top on page number 45. See, divisibility test for 9. Now we have learned, till that we have learned what? Divisibility test for 3, divisibility test for 4. Now we are going to learn divisibility test for 9. If the sum of the digits of a number is completely divisible by 9, then the number is divisible by 9. अगर वो जो नंबर है उसका सम टोटल जो है वो डिजिट्स का जो है वो टोटल अगर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो वो नंबर भी जो है वो 9 से डिवाइड होगा. ये डिविजिबिलिटी किस में थी? ये टेस्ट किस में था? 3 में भी था. हमने सीखा है ना पीछे. इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सेम 9 में भी यही है. 9 और 3 में सेम चीज़ करना है. देखना है आपको फिर से. 1980. सी सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर. यहाँ पे आपको सबका टोटल करना है और यहाँ पे ये जो टोटल किया है उसका चेक करना है. इज द सम डिविजिबल बाय 9, यानी जो आपने टोटल किया क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है. और यहाँ पे दैट नंबर विच इज़ गिवन इन द बॉक्स. डिवाइड द नंबर्स बाय 9. इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल? फर्स्ट वी सी द सम ऑफ दैट नंबर. 1 + 9 + 8 + 0. 1 + 9 10. 10 + 8 18. 18 + 0 18. So 18 is divisible by 9. Yes, 9 2s are 18. So put right over here. Then next, divide the number by 9. अगर उसका सम 8 जो है वो डिविजिबल बाय 9 है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा. See this one. 2 + 9 + 9 + 9. सो नंबर विल बी 29. जब आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 29. सी 2 + 9 11. 11 + 9 20. 20 + 9 29. क्या 29 9 से डिवाइड होता है? नहीं. 9 के टेबल में तो 29 आता ही नहीं है. सो पुट क्रॉस मार्क ओवर हियर. एंड दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट, दिस इज what? Not completely divisible by 9. So put cross mark over here. 5004. How we will check? 5 + 0 + 0 + 4. 5 + 0 5. Then plus 0 5. 5 + 4 9. Is 9 divisible by 9? Yes. 9 ones are 9. It means this number is also divisible by 9. If you अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. 5004. सी क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 9 5s are 45. 50 - 45 5. Then 0. Again 9 5s are 45. Then 4. The number becomes 54.
9 6 ज़ा 54। देखो ये भी जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 है। नेक्स्ट 1 3 3 8 9। डोंट गेट कन्फ्यूज, अगर कितना भी बड़ा नंबर होगा बस आपको एक ही मेथड करना है, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। पूरे नंबर को आप टोटल कर दोगे 1 + 3 + 3 + 8 + 9। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 9 what 24। सो इज 24 डिविजिबल बाय 9? 24 9 के टेबल में आता है? No. So it will not divisible by 9. It means this is also not divisible by 9. This number is also divisible. What? Not divisible by 9. Next 7 5 7 8. So 7 + 5 + 7 + 8. 7 + 5 what? 12. 12 + 7 19. 19 + 8 27। इज 27 डिविजिबल बाय 9? यस, 27 आता है ना 9 के टेबल में। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सी दिस वन 6 + 9 + 9 + 9 + 3। 6 + 9 + 9 + what 3। 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 + 9 33, 33 + 3 36। Is 36 divisible by 9? Yes, 9 4s are 36. It means this number is also completely divisible by 9. I hope you all have understood how to see the divisibility, how to see the divisibility of any number like 3, 4, 9, which we have done now. So if the divisibility of 3 or 9, we will do, we will see the sum of the digits and see if that sum of the digits is divisible by 9 or 3. It means that number is also completely divisible by 3 or 9. And for the 4, what we have understood, only unit and tens number. If that number is divisible by 4, it means the whole number is divisible by 4. Now let's move on to the practice set 22. This is very simple. If you have understood this much, so you can easily do this one. In this lesson only one practice is there and which is very easy. बट कब ईजी होगी? जब आपने अब तक जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने अच्छे से समझे होगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू. सो सी there are some flowering trees in a garden. Each tree bears many flowers with the same number printed on it. यहाँ पर जो है वो हर ट्री में जो है वो कुछ फ्लावर्स है और हर कुछ ट्रीज़ है इस गार्डन में, फ्लावरिंग ट्रीज़ है और हर ट्रीज़ में जो है वो कुछ फ्लावर्स है और उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड मतलब नंबर्स दिए गए हैं. 3 children took a basket each to pick flowers. और 3 यहाँ पे चिल्ड्रन है जो कि हर एक के हाथ में एक बास्केट है और जो है वो वहाँ से ट्रीज पे से जो है वो एक एक फ्लावर तोड़ने वाले हैं. ईच बास्केट हैज़ वन ऑफ द नंबर्स. हर एक बास्केट में कैसा नंबर दिया हुआ है? 3, 4, 9 ऑन इट. ईच चाइल्ड पिक्स दोज फ्लावर्स विच हैव नंबर्स डिविजिबल बाय द नंबर ऑन हिज और हर बास्केट. He or she takes only one flower from each tree. और वो बच्चे जो है वो हर ट्री में से जो है वो एक एक फ्लावर तोड़ेंगे. सो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? सेम जो हम लोग ने किया, डिविजिबिलिटी ऑफ व्हाट 3, डिविजिबिलिटी ऑफ व्हाट 4 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ और व्हाट 9. फर्स्ट वी विल सी दिस गर्ल. इसके पास कौन से वाली बास्केट है? 3. सो वी विल सी, हम लोग ने 3 के लिए क्या देखा है? अगर हमको कोई नंबर देखना है कि वो डिविजिबल बाय 3 है तो हम लोग क्या देखेंगे? हमने अभी सीखा है, पीछे आपको बताया था, क्या था वो? कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. आपको याद है ये हमने किया था कि अगर हम जो है वो
जो नंबर दिया हुआ उनका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा. सो सी फर्स्ट इज व्हाट 111. तो हम लोग कैसे देखेंगे 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3. सो 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स इसके जो है ये जो है वो किससे है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. अब हम इसको कैसे लिखेंगे सी इन दिस वे यू हैव टू राइट अ गर्ल विथ बास्केट नंबर 3. अब हमको जो है वो इसका 3 का देखना है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे 1 1 1. सी 1 + 1 + 1 व्हाट 3. इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3. सो वी विल राइट in that what in front of this 1 1 1. This number is divisible by 3. It means we have to write here. See the next number 3 6 9. See the sum of this number 3 + 6 9. 9 + 9 18. 18 is divisible by 3. Yes 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. सो यहाँ पे आपको लिखना है इसके बास्केट के आगे 3 6 9. See this one 4 3 5. 4 + 3 12. 12 + 5 17. 17 is divisible by 3. No. तो हम लोग ये नंबर नहीं लिखेंगे. See this one 3 + 5 8. 8 + 6 14. 14 जो है वो 3 से डिवाइड होगा. No. सो ये नंबर भी हम लोग नहीं लिखेंगे. सॉरी see here 4 + 3 what 7. 7 + 5 12. सो 12 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है. एक्चुअली मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था. सी 4 + 3 आपको इन सब का टोटल करना है. 4 + 3 7. 7 + 5 12. 12 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है ना. सो यहाँ पे आप लिखोगे 435. सी द नेक्स्ट नंबर 3 5 6. 3 + 5 8. 8 + 6 14. सो 14 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है. तो यानी ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा. यानी आपको ये 3 नहीं लिखना है. नेक्स्ट वन 2 2 0. 2 + 2 4. 4 + 0 4. सो ये भी डिवाइड नहीं होगा. सी दिस वन 2 + 4 6. 6 + 9 15. 15 इज डिविजिबल बाय 3. सो वी विल राइट व्हाट 249. Next 6 + 6 12. 12 + 6 18. 18 is divisible by 3. So 6 6 6. आपको यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 3 होगा आपको वो नंबर यहाँ पे लिखते जाना है. सी द नेक्स्ट वन 4 + 5 9. 9 + 0 9. It means 9 is divisible by 3. That means this number is also divisible by 3. So we will write over here 450. See the next one 9 + 6 15. 15 + 0 15. It means this number is also divisible by 3. 960. Next 4 + 3 7. 7 + 2 9. 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. तो हम लोग फिर से ये नंबर फिर हम लोग ये नंबर लिख देंगे 432. आपको जो नंबर समझ में आए डिविजिबल बाय 3 है तो वो आपको लिखते जाना है जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं. नेक्स्ट 9 + 9 9 9 18. 18 + 9 27. 27 is divisible by 3. So we will write 999. 7 + 2 9. 9 is divisible by 3. So 72 भी यहाँ पे लिख दोगे आप. नेक्स्ट 3 + 3 6. 6 + 6 12. सो ये भी आपको लिखना है 3 3 6. नेक्स्ट 9 + 0 व्हाट 9. इट मीन्स 90 भी जो है वो इसमें आ जाएगा. 90 1 2 3. 1 + 2 3. 3 on 3 6. सो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 123 भी जो है वो हमको लिखना है. नेक्स्ट 108. 1 + 0 1 + 8 9. So 9 is also completely divisible by 3. Have you understood how to write the what numbers? A girl with basket with what number 3.
So these are the numbers which is divisible by 3. See the next one. अब हमको क्या देखना है, 4 का. A boy with basket number 4. अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी, हमने क्या सीखा था, यहाँ पर क्या था, यूनिट और टेंस का नंबर देखना है. से दिस वन सिर्फ यूनिट और टेंस. तो यहाँ पे यूनिट और टेंस का नंबर क्या हो जाता है, 11. तो 11 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है. यहाँ पे क्या हो जाता है नंबर, सिर्फ 69. 69 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है. 35 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है. 56 देन 356. सी द यूनिट एंड टेंस नंबर 56. इज 56 डिविजिबल बाय 4? सो हम लोग करके देख सकते हैं. 56 4 1 ज़ा 4, 5 minus 4 1, then 6, 4 4 ज़ा 16. So this number is completely divisible by 4. So हम लोग 4 के बास्केट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 356. से दिस वन क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ यूनिट और टेंस का नंबर 20. 20 इज डिविजिबल बाय 4. यस. सो हियर यू हैव टू राइट द नंबर 220. आपको जो ट्री पे जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखना है, लेकिन चेक आपको डिविजिबिलिटी से करना है. से दिस वन 49. 49 4 से डिविजिबल है, नहीं है. 66 इज डिविजिबल बाय 4. जो 40 से बड़ा नंबर होगा उसको आपको ऐसे करके देखना है. 4 1 ज़ा 4, 6 minus 4 2, देन 6. 4 के टेबल में 26, 4 6 ज़ा 24. कितना आ गया, 2. सो इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है. 66 इज वॉट, 666 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. से दिस वन 50 इज डिविजिबल बाय 4? नो. 60 इज डिविजिबल बाय 4? वी विल चेक. 60, 4 1 ज़ा 4, then 6 minus 4 2, 0, 4 5 ज़ा 20. Yes, 60 is divisible by 4. It means we have to write over here 960. Next 32. 32 is divisible by 4. Yes, so we will write 432. 432. Next 99 is divisible by 4. No. 72, ये तो यूनिट और टेंस में ही दिया हुआ है, तो पूरा 72 का आप डिविजिबल करोगे तो 4 से डिवाइड होता है. तो यहाँ पे आप लिख दोगे 72. 36 इज डिविजिबल बाय 4. इट मीन्स 336 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. देन 90 इज डिविजिबल बाय 4. नो. 23 इज डिविजिबल बाय 4. नो. देन 8. अगर हम लोग यूनिट और टेंस का नंबर लेंगे तो हमको क्या मिलता है, 8, विच इज़ डिविजिबल बाय 4. सो 108. हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अ गर्ल विथ बास्केट 9. अब 9 के लिए भी हम लोग सेम वापस से देखेंगे जैसा हमने 3 के लिए किया था. 1 + 1 + 1. अब 9 के लिए जो है वो डिविजिबिलिटी सेम है, डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है कि अगर तीनों का टोटल जो है वो क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा. सो 1 + 1 + 1. 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3. लेकिन 3 जो है वो 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं. तो हम लोग ये नंबर नहीं लिख सकते. नेक्स्ट 3 + 6 व्हाट्स, 9. 9 + 9 18. 18 इज डिविजिबल बाय 9 क्योंकि 9 के टेबल में क्या आता है, 18 आता है. तो आप यहाँ लिखोगे 369. देन 435. 4 + 3 7. 7 + 5 12. इज 12 डिविजिबल बाय 9? 12 के टेबल में देखो डिविजिबिलिटी दोनों की सेम है, हमको टोटल करके ही देखना है, लेकिन उनके आंसर्स जो है वो मतलब वो टेबल में वो नंबर नहीं आएगा, हो सकता है कि डिफरेंट आए, बट डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेम है. सो 4 + 3 7. 7 + 5 12. 12 जो है वो 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं. तो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे. 3 + 5 8. 8 + 6 14. 14 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है. नेक्स्ट 2 + 2 4. 4 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है. 2 + 4 6. 6 + 9 15. इज 15 इज डिविजिबल बाय 9? नो. नेक्स्ट
6 plus 6 what? 12. 12 plus 6 18. 18 is divisible by 9. It means we have to write over here 6 6 6. Then 4 plus 9 what? 9. 4 plus 5 9. 9 plus 0 9. So it is divisible by 9. So 450. Next 9 plus 6 15. 15 is not divisible by 9. 4 plus 3 7. 7 plus 2 9. It means this number is completely divisible by 9. 432. 9 plus 9 18. 18 plus 9 27. 27 9 के टेबल में आता है, सो हम लोग ये नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे. नेक्स्ट 7 plus 2. 7 plus 2 इज़ वॉट? 9. और 72 भी जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो आपको ये भी लिख देना है. देन 336. 3 plus 3 6. 6 plus 6 12. Is 12 is divisible by 9? No. Next 1 2 3. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 6 is not divisible by 9. 9 plus 0 और 90 भी जो है वो 9 के टेबल में आता है. 9 10s are 90. So we will write over here 90. 108. 1 plus 0 plus 8 what? 9. So ये जो है वो completely divisible by 9 है. So we will write over here 108. Have you understood how to solve this? This is very very easy and आप जो है वो इसको एक गेम खेलते खेलते भी कर सकते हो. किसी के साथ आप गेम खेल के ये टेस्ट कर सकते हो. You will enjoy. Okay. So complete it in your notebook. Thank you so much students.